Hello my dear students, today we will discuss some more problems based on equation of motion. In the previous lectures we had discussed three equations of motion. I hope you remember all of those. The first equation of motion was V is equal to U plus AT. Second was S is equal to UT plus half of AT square. And the third one was V square minus U square is equal to 2AS, where u is the initial velocity, v is the final velocity, s is the displacement, t is the time. Now we will see a couple of questions from your textbook, and then we will discuss some problems from the point of view of entrance exams. Let us first discuss the problem number 3, sub question 3 from question 3, page number 45 from your textbook. It says that there is a car which travels at a speed of 50 kilometers per hour for 30 minutes. Okay, so first it is traveling with a speed of 50 kilometers per hour for 30 minutes. Then it is traveling with 30 kilometers per hour for another 15 minutes, and then 70 kilometers per hour for another 45 minutes. Now we want to find out the average speed of the car. See, this is the journey of the car. It is starting from this point A. From A to B it is traveling at this speed for 30 minutes. From B to C it is traveling at this speed for 15 minutes, and from B to C, C to D it is traveling for this speed. Now एवरेज स्पीड से हमारा क्या मीनिंग है? एवरेज स्पीड हमको कैसा मिलेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस हमको कैसा मिलेगा? टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. दिस वन. ओके, d1, d2, d3 तीनों डिस्टेंसेस हमको मिलेंगे. ये डिस्टेंसेस को टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 इससे डिवाइड कर देंगे. सो यू विल गेट द एवरेज स्पीड. सो लेट अस फाइंड आउट. ओके, व्हाट इज द कैलकुलेशन? d1 is equal to what? d1 is equal to s1 into t1. So this will be equal to 50 kilometers per hour. Find it. Okay, and whereas this is given in मिनट्स, सो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 30 डिवाइडेड बाई 60. तो ये हम लोगों को किलोमीटर्स में डिस्टेंस मिलेगा. प्लस ओके, और d2 इज इक्वल टू s2 इंटू t2. सेम थिंग, 30 किलोमीटर्स पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 15 बाई 60. ओके, ये कितना होता है? 30 2 ज़ा 60, सो इट इज़ 25 किलोमीटर्स. दिस वन इज 15 4s are 60, then 30 by 4, that is equal to 7.5 kilometers, and d3 is equal to s3 into t3. So this will be equal to 70 multiplied by 45 by 60. So this is 0 cancel कर देंगे. Then 3 2s are 3 15. So 105 by 2. So this will be equal to what? 52.5 kilometers. Okay, so हम लोगों को तीनों डिस्टेंसेस मिल गए. हाँ, now what we will do is we will find the average speed. Okay, total time भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में. So total time t is equal to t1 plus t2 plus t3. Clear? So total time will be equal to what? 30 by 60, this is t1, plus 15 by 60, this is t2, plus 45 by 60, this is t3. So क्या हो जाएगा? This is 60 plus 30, 90 upon 60. So this will be equal to 3 by 2 hours. Clear? So now what we will do is we will find out average speed. Average speed is equal to what? d1 plus d2 plus d3 upon t1 plus t2 plus t3.
Okay, so we will find out 25 plus 7.5 plus 52.5 divided by कितना आया था 3/2. Okay, so now this is equal to 0.5 हो गया. So this is 53 plus 7 60 20 80 85 into 2/3. Clear? So this is equal to 170 upon 3. So कितना हो जाएगा? 3 5s are 15, 3 6 are 18.66 kmph kilometers per. Clear? This is as easy as this. We have to only remember that average speed is obtained by finding out the total distance and divide that by total time. Okay. So the next question. You can understand this by pausing the videos. You can go slow. धीरे धीरे जाइए. जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ फिर से पीछे आके देख सकते हैं. But this is very easy. There is nothing that you will not be able to understand. चलो next question. Question number 4. उसी में का page number 45. यहाँ पे एक velocity time graph दिया हुआ है. See velocity time graph. This is your velocity. This is time. So it's like this. And then okay. This is E, this is O, A, B, C, D. This is 20 meter per second, and this is 3. This is 6. This is 8. 6. This is 8. Okay. So this is the velocity time graph. Now he wants us to determine, first one is what? First one is initial speed of the car. Now you can easily see that at time t is equal to 0, this is starting from here. Okay, so this is at time t is equal to 0, the speed is 0 only. So u, that is initial speed, is equal to what? 0 meter per second. Clear? तो ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था. आई थिंक यू विल बी एबल टू इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार. सी दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये मैक्सिमम स्पीड है, इसके ऊपर तो कुछ जाना है नहीं, बाद में उतना ही कांस्टेंट स्पीड है, फिर कम हो रहा है. क्लियर? यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? 20 मीटर पर सेकंड. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. Now part of the graph showing zero acceleration. अब velocity time graph में जो velocity time graph का slope होता है, that gives us the acceleration. Okay. अब ऐसा अगर ग्राफ रहेगा तो इसका मतलब क्या है? velocity is not changing, it is remaining constant with time. जब ऐसा होगा तब उसका acceleration कितना होगा? 0. Okay. So जीरो एक्सेलरेशन वाला पार्ट यहाँ से कौन सा है? पार्ट ए बी. ओके, जीरो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0 किसमें? ए बी, पार्ट ए बी. ठीक है. चलो इसके बाद में पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मैंने बताया है कि व्हेन द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये देखिए इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या है? ये तुमको चढ़ना पड़ रहा है, देखो इस टाइप से. तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप. इसके बाद में इधर जाएंगे तो दिस इज नेगेटिव. क्लियर? सो नेगेटिव स्लोप जहाँ पे भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट इज द रिटार्डेशन. सो रिटार्डेशन वाला पार्ट कौन सा है? रिटार्डेशन कौन से पार्ट में शो करता है? पार्ट BC. So BC region में देखेंगे, so it is showing retardation, that is decrease in the acceleration. Okay. Then distance traveled by the car in first 6 seconds. Okay, first 6 seconds में distance कितना travel करता है? See 0 to 6 इस part में यहाँ तक
अब आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है, देखिए हमारा कर्व, दिस वन एंड दिस वन, देखो 6 सेकेंड्स तक, तो इसने जितना भी ये एरिया कवर कर रखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट S will be equal to what? The area of triangle OAE plus area of rectangle क्या है, ABDE। चलिए फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका बेस कितना हो गया, 3। सो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू व्हाट इज दिस हाइट, 20, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, 3, ये 3 है एंड दिस इज 6, तो दोनों के बीच का 3। सो दिस इज लेंथ इंटू विड्थ, ये कितना है, 20। क्लियर? सो देयरफॉर the area will be 2 tens are 20, 3 tens 30 plus 60, this is equal to 90 meters is the displacement. Okay, quite easy to solve this. Okay, so I hope you have understood this thing. These are very easy questions, so anybody will be able to understand and solve them. अब थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू डील विद द JEE नीट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए वो वाला एग्जांपल्स लेते हैं। नाउ सपोज देयर इज दिस डिस्टेंस D बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। क्लियर? यहाँ पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी है v1, यहाँ पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी है v2। ओके, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है a। ओके, एक्सेलरेशन इज a। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज d टोटल। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, vm, दैट इज वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना है, v1, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, v2, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट m, that is mid point। यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो d/2 होगा, क्योंकि this is the mid point। Now let us see what can be done। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर द पार्ट AB। Now you know that this one फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, v2। सो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, d। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड वन, अगर यही पार्ट के लिए अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितना है, vm। सो vm स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a इनटू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, d/2। क्लियर? सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। ओके, vm हम लोगों को बस फाइंड आउट करना है। तो या तो हम लोग ये करें कि इस इक्वेशन से v1 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करें और वैसे के वैसे ही यहाँ पे पुट करें, या तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन vm स्क्वायर
minus v1 square is equal to this upon this, ये 2a d कैंसिल हो जाएगा. ओके, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन दिस अपॉन दिस है ना, तो ये 2 तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो इट विल बी 2. क्लियर? सो देयरफॉर अब क्या करो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स ऑफ vm स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर. देन यू मूव इट हियर, सो इट विल बी v2 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो, सो 2v1 स्क्वायर माइनस 1v1 स्क्वायर, सो दिस इज 1v1 स्क्वायर. So this is equal to 2 times of vm square. So therefore vm square is equal to v1 square plus v2 square or v2 square plus v1 square, one and the same thing, upon 2. So इसका मतलब velocity at midpoint is equal to square root of, okay, this is how we get the velocity at midpoint. Okay, this is equal to what, under root of v1 square plus v2 square upon 2. Okay, so ये हम लोग फार्मूला डायरेक्टली यूज भी कर पाएंगे अभी. ठीक है, ये जो भी फार्मूले हैं स्ट्रेट अवे याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम लोग इसको डिराइव करें और फिर सॉल्व. ओके, प्रैक्टिस करने पर ये फार्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोगों को याद ही रह जाते हैं. ओके, सो दिस वन इज क्लियर. चलो नेक्स्ट वन, next example. See, next example is what? Suppose point A पे police is there. Okay, point A is, a police is standing at point A, and point B, chor, thief, is at point B. Now the police is already moving with velocity 10 meter per second. नहीं, एक काम करते, चोर is moving with a constant velocity of 10 meter per second. Okay, ये constant velocity से move कर रहा है 10 meter per second. Okay, जबकि पुलिस is starting from rest, so u for police is rest, मतलब 0, u is equal to 0 for police. Okay, now he is moving with a constant velocity. I hope you are understanding this problem. Okay, this is going, and the acceleration of police is 10 meter per second square. He is moving with a constant acceleration of 10 meter per second square. Now we want to find out at what time and at what distance the police will be able to catch the thief. Clear? देखो, इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर्स. क्लियर? अब ये ऑलरेडी दौड़ रहा है at 10 मीटर पर सेकेंड, and this one police starts moving from rest. ये तो ऐसे ही खड़ा है. Okay, he sees this and then he starts running. So initial velocity for him u is equal to what? 0. Okay, now suppose the police is able to catch this thief in time t. Okay, time t के बाद में पुलिस चोर को पकड़ सकते हैं. Now चोर तो कैसा दौड़ रहा है? He is moving at a constant velocity. So distance covered by, distance और displacement same है क्योंकि एक ही direction में movement. So distance covered by चोर is equal to velocity into time. Velocity कितना है? 10 meter per second. Time कितना हमने बोला? t. So 10t is the distance traveled by the thief. वो यहाँ तक आ गया suppose. Clear? Now in the same time police has to travel this distance. What distance? 100 meters.
जो कि पहले उनके बीच में डिस्टेंस है प्लस 10t जो कि इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा तब तो ये खुद भी यहाँ आके पहुंचेगा. नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ut plus half of at square. Now what is u? U is 0. 0 into t plus half of acceleration कितना है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into t square. Okay, so therefore 100 plus 10t is equal to, this is 0, 5t square. Okay, so therefore अब 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो या फिर पहले सब उधर लेके चले जाओ. क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इज इक्वल टू 0. इसको 5 से डिवाइड कर दो. सो व्हाट वी गेट इज t स्क्वायर माइनस 2t माइनस is equal to 0. This is the quadratic equation, so therefore it must have two roots. You must have studied this in 10th class. Okay, so इसके कितने रूट्स होने चाहिए? 2 रूट होने चाहिए. क्या क्या रूट्स हो सकते हैं इसके? इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या? So t will be equal to minus b. माइनस b मतलब कितना है? माइनस ऑफ माइनस 2, दैट इज 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर. बी स्क्वायर क्या है? माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 a इज 1 इंटू सी इज माइनस 20. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 इंटू 20 इज व्हाट 80 अपॉन 2a. a कितना है? 1. सो 2 इंटू 1 इज 2. सो ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2 इज 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा? 80 प्लस 4 84 अपॉन ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर है. ओके, स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 84. ओके, 2 मतलब किसका स्क्वायर रूट? 2 है. 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो इसको अंदर लेके चलें. क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा? 84 बाय 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट 21. क्लियर? इसको और इसको हमने सेपरेटली 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों के लिए है ना डिनोमिनेटर. क्लियर? अब ये रूट ऑफ 21 है मतलब इट मस्ट बी बिटवीन 4 एंड 5. अब 1 माइनस 4 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा. ये तो टाइम है, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है. ओके, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21 सेकेंड्स. ओके, सो इतने टाइम के बाद में ये जो चोर है वो पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा. क्लियर? ना हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस में पकड़ा जाएगा. सो इफ टाइम t is equal to 1 plus under root of 21 seconds, so what is the distance traveled by thief? Distance traveled by the thief तो अगर हम लोग x बोले, so this becomes equal to velocity into time. उसका velocity कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21. इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा. सो देयरफॉर पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पकड़ेगा उसको? ओके, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस इज इक्वल टू, ऑलरेडी उनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 100. इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 10 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो जितना भी डिस्टेंस होगा दैट इज द टोटल डिस्टेंस दैट द पुलिस हैड टू ट्रैवल सो एज टू कैच द चोर. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज इजी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग. ये याद रखना जरूरी है कि चोर जो है उसका मोशन इज नॉट विथ एक्सेलरेशन. उसको एक्सेलरेशन नहीं है, उसका वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है. जबकि पुलिस का वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है. ओके, मतलब उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन. क्लियर? सो ये इस टाइप का एक प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, लेट अस डिस्कस वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम.
अनदर एग्जांपल, दो बच्चे हैं, यहाँ पे सोनू है, यहाँ पे मोनू है, क्लियर। अब सोनू और मोनू के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर्स है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन सोनू एंड मोनू इज 100 मीटर्स। इसमें जो सोनू है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और मोनू है नहीं, सोनू है 10 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी चल रहा है और मोनू है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ओके। सो एट t इज इक्वल टू 0 इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0। जबकि इस केस में एट t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू व्हाट, 100 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब इसमें इंटरेस्ट की बात यह है कि इसका एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि इसका एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब क्या है, इन दोनों का बीच है 100 डिस्टेंस है 100 मीटर्स। अब सोनू मोनू एक जगह पे रुका हुआ है, क्लियर। और सोनू ऑलरेडी सोनू दौड़ रहा है और वो जब 100 मीटर के डिस्टेंस पे है तब उसका वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी है, 110 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में इसका वेलोसिटी एक से बढ़ता चला जाएगा, ओके। अभी 10 है, 11 होगा, फिर 1 से और बढ़ता चला जाएगा, हर एक सेकेंड को 11, 12, 13 ऐसा होता चला जाएगा, क्लियर। इसका वेलोसिटी इनिशियली 0 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड में उसका वेलोसिटी 2 से बढ़ता चला जाएगा, 2, 4, 6, 8 ऐसा होता चला जाएगा, क्लियर। तो दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशन में, दोनों का वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी धीरे बढ़ रहा है जबकि इसका वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रहा है। उन दोनों के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये इसका पीछा करते चला जाएगा, क्लियर। नाउ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इसका वेलोसिटी और तेजी से बढ़ने लगेगा, क्लियर। जबकि इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, तो इसका वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट कम है। तो इसके बाद एक पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। पहले तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, क्लियर। ये डिस्टेंस मिनिमम कब रहेगा, द डिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन देयर वेलोसिटीज विल बी सेम, क्लियर। इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो इन दोनों का वेलोसिटी जिस पॉइंट पे सेम होगा, उस पॉइंट पे द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द टू विल बिकम व्हाट, मिनिमम, ओके। सो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि टाइम व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम एंड ऑल्सो मिनिमम सेपरेशन कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई आफ्टर टाइम t या फिर इन टाइम t देयर सेपरेशन इज मिनिमम, ओके। सो मिनिमम सेपरेशन कम होगा, कब होगा, सेपरेशन इज मिनिमम व्हेन their velocities are same, दोनों का वेलोसिटी, thereafter the separation will increase, okay। now दोनों का वेलोसिटी सपोज टाइम t के बाद में होता है v, हाँ, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v is equal to u plus at। u कितना है, 10 प्लस इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1, ओके, इनटू टाइम t के बाद में हम लोग बोल रहे हैं, क्लियर। ये तो हो गया सोनू के लिए। मोनू के लिए देखो, इसका भी वेलोसिटी v होना चाहिए बढ़ के। नाउ दिस v विल बी इक्वल टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 2 इनटू टाइम t, ओके। सो बोथ आर इक्वल, सेम होना चाहिए वेलोसिटी। तो दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं, 10 प्लस t इज इक्वल टू 2t,
सो देयरफॉर इसको इधर लेके चले जाओ, 2t minus 1t that is t is equal to 10. ओके, सो 10 t is equal to 10 सेकेंड्स के बाद में इन दोनों का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कैसा होगा, मिनिमम होगा. ओके, इसके बाद में द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. अब हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई इनका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना था. ओके, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं. अब देखो इतने टाइम में सोनू कितना डिस्टेंस कवर कर गया, ये पहले देखो. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोनू, s is equal to ut plus half of at square. So u is how much? U is 10 into t is how much? 10 ut plus half of a कितना है भाई इसके लिए 1 into t square that is 10 का स्क्वायर. कितना हो गया, 10 into 10 is 100 plus half of 100 that is 50. So कितना हो गया 150 meters. ये कौन क्या हो गया, the distance traveled by सोनू. सोनू ये तो 100 मीटर और 50 मीटर यहाँ सोनू चल गया. क्लियर. अब मोनू कहाँ पहुँच गया ये देखते हैं. ओके, मोनू इधर सॉल्व करता हूँ. मोनू कहाँ पहुँच गया, s इज इक्वल टू u कितना है 0 ut प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है मोनू के लिए 2, टाइम कितना था 10 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 2, ये तो कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर इज 100 मीटर्स. ओके, सो मोनू जो यहाँ था वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया है 100. ओके, ये 150 तो 100 तो इनके बीच का डिस्टेंस पहले से ही था ये वाला. तो ये यहाँ पे ये कितना चला है 50 यहाँ से, हाँ सोनू, और मोनू कितना चला है 100. तो इनके बीच का मिनिमम सेपरेट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 100 minus 50 that is 50. Therefore distance of separation is equal to 50 meters. Clear? तो 50 मीटर का अंतर is the minimum distance of separation between Sonu and Moon. Clear? I hope you have understood how to apply the equations of motion. We will discuss some more problems so that you get better insight into how to apply these three equations of motion for solving various problems. Now for board standard you will be in a position to solve them right now. लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग और भी डिटेल में प्रॉब्लम डिस्कस करते चले जाएंगे. ओके, कुछ नए कंसेप्ट्स भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में टेक्स्ट स्टेट के या फिर सीबीएसई के भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी है. तो वो भी हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे आगे के लेक्चर्स में. ओके, सो यू कीप योर इंटरेस्ट अलाइव, you keep on practicing all these problems and some unsolved problems also, so that you develop better insight into all these topics. Okay, thank you very much for viewing this video.